Now, my very first question, do you remember anything that you studied in the basics of audit planning, like in this entire chapter? Can you name, all of you, can you name what are the preliminary engagement activities that you have performed yesterday? Continuance of client relationship. Acceptance and continuation of the relationship. Evaluating compliance with ethical requirements, including Evaluating compliances with the ethical requirement. What was the second one you are missing? Establishing an understanding of terms of engagement. Establishing. Understanding the terms of engagement. Yes, ma'am. Is it all right? Correct? Under the acceptance and continuation, then you study the integrity and all of that. Then you can go into the layers. But at least if you see this word, you will be able to remember the answer. Yes. Now, can we all revise now that what are the factors to be considered for establishing overall audit strategy? What was the first one? There are five. Are you able to recognize? Identify the characteristics. Everybody keep your mic on. You can speak together. It's okay. We are just revising, right? So the first you will identify the characteristics of the engagement that defines its scope. Scope. So उसको वो करने के लिए what are the things that your characteristics कैसे identify करोगे? What are the things you will check? Applicable FRS. Yes. Nature of business segments. Nature of business segment. Specific report. Industry specific regulatory requirement. Expected use of audit evidence obtained in previous audits. Obtained in the previous audit. Yes. Juhi and Geeta, you have to speak. Keep your mics on. It's okay. थोड़ा सा वो disturbance लगने दो. But हमको revise करना है ना. We are sitting in the class, right? हमारी paper है. So please, all of you, keep your mics unmuted and then speak. Then what was the second one? Reporting objective. Reporting objective. There were two objectives, right? One, you wanted to ascertain the timing of the audit, and second, different audit procedures. Nature of communication required. Beautiful. What is the third one then? consider the factor that in auditor's professional judgment. Significant in directing the engagement statements. Sorry. Consider the factor that is auditor's professional judgment are significant in directing the engagement efforts of the team, right? Yeah. What are the factors that are important? But have we completed that yesterday in the class? Yes. We did. Yeah, we did. How do you Volume. team efforts? Okay. Volume of transactions. Volume of transactions. Okay. Significant changes in Industry development. Significant change in Financial financial reporting framework. reporting framework. Change in legal requirements. legal environment. requirements affecting the entity. Then what was the last two factors? Considering the result of preliminary audit activities. Considering the results of results of preliminary engagement activities and the knowledge gained on other engagement performed. partner of the entities related. And what is the last one? Ascertain the nature, timing, and Resources necessary. Timing and extent of resources required for the audit. And once you do the preliminary engagement activities, then you have to understand that you have to do the planning activity. When you have to do the planning activity, will have two bacha. First, you will have to establish the overall audit strategy, and then you make the detailed audit plan, which will be based on your overall audit strategy. So, how do you start the answer of audit strategy? What is the meaning of audit strategy, or how does it help? overall audit overall scope, timing, direction, and directions, and develop a plan and guide the and development guide of for audit develop a plan. plan. Overall audit plan. अरे beautiful. क्या याद है? मजा ही आ गया इसी बात पे. Are you all able to see my screen? Yes, ma'am. गजब. Yes. कभी कभी तो समझ ही नहीं आता इंटर के नोट्स कौन से, फाइनल के नोट्स कौन से हैं. कल कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? फिर अब डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान पे गए. अच्छा, वी हैव स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान. ये कर लिया था कल अपन ने. Yes, ma'am. हो गया था. हमने पढ़ा था कि वी शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स इन द एग्जाम. कि पहला क्या, ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच होता है, एंड देन ऑडिट प्लान में वेरियस मैटर्स जो ऑडिट स्ट्रैटेजी के टाइम पे हाईलाइट होते हैं, दैट वी विल एड्रेस इन द ऑडिट प्लानिंग स्टेज. यस.
ऑडिट स्ट्रैटेजी विल डिटरमाइन द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये भी आपने अभी जस्ट बोला है, एंड ऑडिट प्लान विल डिटरमाइन द NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. Yes. Nature, time, and Planning takes place over yes, ma'am. Yes, ma'am. the course of audit, right, as the engagement develops. And last में आपने बोला था कि establishing the overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily a discrete phase or sequential phase. Sequential process. Rather वो But consequential होते हैं, interrelated. दूसरा change होगा. अरे कसम. किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? We decided auditor का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता Auditor. है. Yes. चेंज वाला क्वेश्चन हमने क्या मार्क किया था? इम्पोर्टेंट. हमने यही बोला था ना कि can update and change your overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit because Yes. of Unexpected events, Unexpected events. change in conditions. Unexpected event, change in conditions. Evidence obtained And audit from audit evidence obtained procedures. from result of audit procedures. right, and जिसकी वजह से you will end up reconsidering the nature, time and extent of further audit procedures required, right? उसमें उन्होंने एक ऐसा भी बोला था कि this may be the case when information come to the your attention is very different from what you have originally obtained, right? Information when the auditor has planned, planning के टाइम पे जो आपके पास जानकारी थी versus अभी with that significantly differs. Then what is the last one? उन्होंने example दिया that the audit evidence obtained from the detailed checking may contradict the audit evidence. difference Test होता है. of controls. गजब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ऑब्वियसली आपका टीम है ना, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, डोंट यू थिंक दैट यू नीड टू एक्चुअली सुपरवाइज द वर्क डन बाय. अभी आप खुद सोचो, आप बॉस होगे और कोई फर्स्ट ईयर का आर्टिकल है, अब वो किसी को, आप उसको ऑडिट में भेज दोगे, तो क्या अगले दिन आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करके थोड़ी दे देने वाले हो डायरेक्टली? यू विल हैव टू सुपरवाइज कि भाई आपके बच्चे लोग कैसे काम कर रहे हैं. देन यू रिव्यू देयर वर्क एंड मल्टीपल टाइम रिव्यू करने के बाद देन द फेज विल कम जहां पर आप ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे. करेक्ट? लॉजिकली ऐसे ही होना चाहिए. The auditor shall plan the nature, timing, and extent of direction, supervision of the engagement team members and review. Now, this is where you should learn the word of, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प करेगा पूरा लाइन. DSNR. Engagement partner या auditor क्या करता है? He will direct the engagement team member, he will supervise the direct team engagement team members, and he will review their work. Yes, ma'am. Done. The nature, timing, and extent of direction, supervision, and review will depend on certain factors. मानवी, can you tell me what is the first factor? और सुबह सुबह से कैसे नींद आ रही है मानवी? Size and complexity of entity. First. सबसे पहले ये, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि कितना काम डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू करना है, राइट? सो इट विल डिपेंड ऑन द साइज of the entity. साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसकी साइज. Second, the area. सॉरी, Yes, ma'am. that is the word, right? Size and the complexity of the entity. याद रहेगा ये एग्जाम तक? Yes. Siddiq, what is the second one? Area of the audit. Area of the audit. क्योंकि सी, अगर मुझे मालूम है कि अभी देखो P&L एक्सपेंसेस में ना कुछ एक्सपेंस, अभी रेंट का एक्सपेंस है, अभी रेंट का एक्सपेंस में मैं तुमको क्या डायरेक्ट करूं? मैं तुमको सीधे बोल दूंगी ना कि बाबा रेंट एग्रीमेंट देखो, रेंट एग्रीमेंट के साथ में ये देखो कि एंटिटी ने हर 12 महीने का रेंट बुक किया है नहीं किया है, करेक्ट अकाउंट में बुक किया है नहीं किया, उसका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, वो चेक कर लो. एंड उसके साथ में एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख लो कि आसपास में उस एरिया में उतने फैक्ट्री के साइज का या उस सेम इंडस्ट्री में सेम रेंट चल रहा है क्या. उससे ज्यादा मैं आपको क्या, अभी मैं आपके सर पे थोड़ी बैठे रहूंगी, अरे हरसिद्धि किया या नहीं किया, तुमने अभी तक ये चेक क्यों नहीं किया? नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. बट if you are going to do the audit of investment, then it is my responsibility that I sit and ask you, हरसिद्धि, how did you, पहली बात तो मैं आपको डायरेक्ट करूंगी कि ऑडिट कैसे करना, कैसे इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि वहां पर फेयर वैल्यू कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है. देन उसके बाद में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट. देन आई विल हैव टू सिट एंड सुपरवाइज कि हाउ यू आर डूइंग इट. ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूं और 3 महीने के बाद पूछूं कि हो गया क्या ऑडिट. देन आई विल हैव टू रिव्यू योर वर्क एज वेल. Right? So it depends on the area of audit. Then उसके बाद में what is the next one, Payal? Assessed
Risk of material misstatement. Assess risk of material मिसस्टेटमेंट. नाउ ऐसे 315 जब आप करोगे तो सपोज आपको पता चलता है कि किसी एरिया में रिस्क ज्यादा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन सम एरियाज इफ द रिस्क इज हाई, ऑब्वियसली इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन कि आपको कितना उसको डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू करना है. अगर आपको मालूम है कि यार कंपनी में इन्वेंट्री में बहुत इजीली फ्रॉड होता है, तो देन ऑब्वियसली आपका अटेंशन इन्वेंट्री की तरफ ज्यादा चला जाएगा, राइट, रादर देन पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू एनी अदर एरियाज. सो इट इज ऑल्सो ऑन द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Right, Payal, can you cover the last one? The capabilities and competence of individual team members performing the audit work. So, अपने टीम का कॉम्पिटेंस चेक करो. अगर सपोज यू आर द बॉस, ठीक है पायल, एंड सपोज मैं तुम्हारे टीम में हूं एंड आई एम द फर्स्ट ईयर आर्टिकल. अब आपको यू नो ऑलरेडी दैट मधु का जो अकाउंटिंग नॉलेज है बहुत वीक है, ठीक है, वो कैसे तो भी मतलब पास होकर के आई है अकाउंट्स में, राइट? आई हार्डली स्कोर 41 42 नंबर. इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या घंटी बचेगी कि ये बंदी अगर ऑडिट करने के लिए गई तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन है ये ठीक से नहीं चेक कर पाएगी. आपको इंटरव्यू के टाइम पे पता चल जाएगा कि मुझे कौन से एरिया में, अगर सपोज अकाउंट्स मेरा स्ट्रांग है बट आई एम वेरी वीक इन द जीएसटी एंड द इनकम टैक्स मैटर, डू यू रियली थिंक कि आप मुझे टीडीएस का चेकिंग मुझसे करवाने वाले हो? या फिर करवाने भी वाले होगे तो आप उसको ज्यादा रिव्यू करोगे, आप मुझे ज्यादा गाइड करोगे कि मधु देख टीडीएस के ये सेक्शन होते हैं, इसमें ये वाले कैटेगरीज में इतना टीडीएस रेट करता है, इस दिन उसका लाइबिलिटी पे होता है और अब वो चेक करना है. सो यू विल डायरेक्ट मी मोर बिकॉज यू नो कि मेरी क्षमता क्या है, मेरा कॉम्पिटेंस क्या है. एम आई राइट गाइज? इज दिस वेरी लॉजिकल जो पॉइंट आपने पढ़े हैं कि कितना किसी के काम को सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे एंड रिव्यू करे उनके काम को, डिपेंड करेगा क्लाइंट का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑडिट में क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां कहां मिला, एंड आपके टीम का कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस क्या है. वंस फॉर ऑल याद करके खत्म करो ये टॉपिक में, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. Done? Now, Done. please listen. Now you will have to document whatever strategy you made and whatever plan you made. सिर्फ इतना नहीं, अगर आपने ऊपर ही अग्री किया था कि यू कैन चेंज योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, यस. सो अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस यू मेड इन द स्ट्रैटेजी एंड प्लान, सो व्हाई यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेंशन कि आपने चेंज किया है, एंड दूसरा व्हाट वाज द रीजन फॉर चेंज. ये इतू सा टॉपिक याद हो गया, 3 वर्ड्स की क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है आपका ऐसे 300 के पर्सपेक्टिव में? Yes, ma'am. से इट आउट लाउड. हो गया? डन? यस. अब समझो क्यों करना है, क्योंकि इसे आपको क्या लगता है इतना ही क्वेश्चन आएगा क्या लिखने के लिए? नहीं, ठीक है. सो दे विल आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आईसीए को थोड़ा डिफरेंट पेपर बनाना है. सो दे विल नॉट आस्क अभी तक आपने ऊपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न किए हैं, वो नहीं पूछेंगे. वो लास्ट टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान का, आपको ये पूछ लेंगे. मैम आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है लास्ट अटेम्प्ट में. जनवरी में आया था ये एग्जाम, ये अभी मे बी आया था क्या ये वाला? हाँ. ओके, तो अपन सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं फिर इसका, मतलब ऐसे छूटना नहीं चाहिए कि अपन ने नहीं पढ़ा, ठीक है. सो पहली बात अगर याद रखो, अगर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन आएगा तो यू विल नॉट आंसर इट एज पर एसए 230, ठीक है. दिस इज स्टिल एसए 300 का आंसर है ये. सबसे पहला तो ये क्लैरिटी होना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन वर्ड देखा तो इंसान सीधे 230 में पहुंच जाता है चैप्टर 6 में, ऐसा नहीं करने का. दूसरा,
सुनो, कंसेप्ट याद कर लो मैं क्या बोल रही हूँ. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज अ रिकॉर्ड. किस चीज का रिकॉर्ड होता है? ऑफ की डिसीजंस कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम. मतलब आपने जो की डिसीजंस लिए थे प्लानिंग के टाइम पे और जो आपने अपनी एंगेजमेंट टीम को सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट किए हैं उसका रिकॉर्ड होता है ये. Documentation of overall audit strategy is a record of key decision you made while planning the audit and also the significant matters that you communicated to the engagement team. Can you say this word? Can you say this full sentence to yourself? The documentation. Yes, ma'am. सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान. ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ. किस चीज का रिकॉर्ड है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. आपने जो भी रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर टेक्निक डिसाइड किए हैं उसका रिकॉर्ड है ये, एंड दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का रिकॉर्ड है. Yes, ma'am. डन? इतना याद रख पाओगे? जस्ट से इट आउट लाउड द फुल सेंटेंस. थर्ड, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड. किस चीज का रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस. मतलब इट इज अ रिकॉर्ड कि सारे ऑडिट प्रोसीजर्स आपने प्रॉपरली प्लान किए हैं, जिसको पहले किसी ने अप्रूव किया है, आपके बॉस ने या कोई सीनियर एंगेजमेंट पार्टनर जो भी होगा उसने अप्रूव किया है. एंड द ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट एंड टेलर्ड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस. मतलब कि ऑडिट आपने प्रॉपर प्लान किया, उसका एक चेकलिस्ट बना लो कि ये कवर किया क्या, ये कवर किया क्या, ये कवर किया क्या, एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. एंड लास्ट, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ कि आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस किया. Yes, ma'am. एनीवन अपीयर्ड फॉर द जनवरी पेपर बिफोर? कितना नंबर मिला था इस क्वेश्चन में? I do this with my CA final students a lot. See, अटेम्प्ट का कुछ मतलब नहीं रहता, लेकिन क्या इट्स अ स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स दैट यू डू इन द लाइफ, राइट? सो ऑब्वियसली सीए में वैसा ही है ना कि छोटा सा मिस्टेक है, वो पर्टिकुलर सब पढ़ के गए, वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ के गए, स्टैंडर्ड से तो मार्क्स चले जाते हैं. सो मैं सीए फाइनल वालों के साथ बहुत करती हूँ कि कीप योर कॉपीज इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ चेक कितने नंबर मिले थे उसमें, एंड नाउ यू रियलाइज कि आईसीए को ब्लेम करना फायदे का काम नहीं है. हम काम चोरी थोड़ा ज्यादा करते हैं. ठीक है. सो विल यू एटलीस्ट, अगर ऐसा है तो कम से कम आप ये तो मान के चलते हो कि 4 स्पेसिफिक पॉइंट है एंड कोई भी ओवरलैपिंग पॉइंट नहीं था इसके अंदर. और हम अगर ओवरलैपिंग पॉइंट्स लिख करके आते हैं तो फिर ऐसे मार्क्स नहीं देता है, बिकॉज उसने 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लर्न करने के लिए दिए थे. ठीक है. एनीवे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जनवरी में आ चुका है. आई विल ऑल्सो आस्क कि जनवरी 25 में आस्क्ड क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है. ऑडिट प्रोग्राम का आई विल डू अ सेपरेट रिकॉर्डिंग.